Altcoin investing is just retail VC but rigged. Altcoins आपको investor नहीं बनाते. Basically, when you are investing into altcoins without proper guidance and mentorship and putting your research and putting your effort and resources in which coin to invest, so they make you exit liquidity for venture capitalists, for VCs. 95% of altcoins are engineered, they are created to pump, उनको pump कराया जाता है, but not for you, for the VCs, for the venture capitalists, for the early investors, for the seed funders. अगर आप altcoins को TGE यानी कि token generation event पे tokens launch किए जाते हैं through private channels, अगर आप वहाँ पे alts को buy नहीं कर रहे, you are already late, आप already late हो चुके हो. alts को exchange listing पे buy करना या hype पे buy करना is never the right strategy, never the right strategy if you truly want to make most of your investment. Altcoins decentralization का dream sell करते हैं, but truly in reality altcoins are more centralized than JP Morgan itself. When you're buying altcoins, जब आप altcoins को buy करते हो on exchange या exchange listing, आप किसी और investor की liquidity strategy का हिस्सा बन रहे हैं, liquidity strategy का feed बन रहे हैं. When you are not buying alts at their TGE token generation events पे या उनके launch पे, not listing, launch पे. Let's get deeper. So basically VCs जो होते हैं, venture capitalists जो होते हैं, early investors जो होते हैं, they buy the bottom, you buy the peak. जो early investors होते हैं वो basically 90 to 95% less than the listing price पे tokens को buy करते हैं. जैसे कि Solana के जो seed investors थे, they paid $0.04 for Solana and retail investors started buying Solana at $1. Can you see the difference? Solana ने actually उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं जिन्होंने Solana को right time पे spot किया था with its all potential और उसको 0.04 पे बाय किया था जब इसकी लॉन्च हुई थी. अगेन लिस्टिंग और लॉन्च में फ़र्क होता है. ओके, ऑन एवरेज जो रिटेल ROI पोस्ट TGE यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट के बाद यानी कि लॉन्च के बाद जो एक एवरेज ROI फॉर एन ऑल्ट कॉइन होता है वो लेस देन 0.5x होता है, लेस देन 0.5x. सो दैट्स द एवरेज that you're going to get out of your altcoin investment when you buy alts at listing or later. Number 2, tokenomics are designed to dump. ठीक है, मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की है. So if you are interested in going deeper into this thing that tokenomics are designed to dump, मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना. लेकिन मैं क्विकली बता दूँ what do I mean by tokenomics are designed to dump. जो टोकन अनलॉक स्केड्यूल्स होते हैं उसमें जो मोस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, उनका 30 to 50% ऑफ टोटल सप्लाई अनलॉकिंग होता है 12 से 18 महीने के दौरान. ओके, फिर जो क्लिफ पीरियड्स होते हैं यानी कि स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड जहाँ पे अनलॉकिंग की जाती है, 90% ऑफ द लार्ज डंप्स जो होते हैं वो उनके क्लिफ पीरियड के दौरान होते हैं, यानी कि अनलॉकिंग पीरियड अक्रॉस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान 90% डंप होते हैं. और कौन इनको टोकन्स को डंप करता है? VCs या फिर टीम of developers. मुझको रोज़ाना के हिसाब से emails आ रही होती हैं from different projects के तुम हमारे बारे में, हमारे project के बारे में बात करो and we are going to pay you in our tokens, and I always say no. Anyone who's trying to pay me in their respective native tokens, I always say no to them. Why? Because अगर वो मुझे अपने टोकन्स में पे करना ऑफ़र कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मेरी तरह और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उनको भी वही काम करेंगे. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टोकन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट. और आपको कैटेगोरिकली प्रोजेक्ट्स बता रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स को कि हमारा जो टोकन है इस वक्त इतने भी 0.04, इवन जस्ट लाइक येस्टरडे देयर इज़ अ कंपनी इन द US और वो लोग क्रिप्टो टैक्सेशन को, वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि हम क्रिप्टो टैक्सेशन में वी आर मास्टर्स एंड वी आर एक्सपर्ट्स. तो दे सेड कि हम लोगों का ये टोकन लिस्टेड है 0.04 के लिए, वी आर गोना पे यू इन आवर टोकन्स. तो इमेजिन अगर मैं और सारे इन्फ्लुएंसर्स हम लोग लेना शुरू कर दें, देन डेवलपर्स, देन VCs, अगर सारे के सारे इकट्ठे डंप कर दें तो जो लोग बाद में उस टोकन को खरीदेंगे थ्रू इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, वे डू दे स्टैंड. रिटेल ऑल्ट कॉइन को जो बाय हम लोग करते हैं, इट्स नॉट a value game, it's a narrative game. जो narrative जब भी जिस चीज़ का build होता है वही चीज़ hype होती है. So for example हम लोगों ने AI का narrative देखा early 2023 में, हम लोगों ने RWA का narrative देखा early 2024 में, और अब हम लोग modular chains का narrative देख रहे हैं in 2025. modular chains very quickly जैसे कि Celestia and Cosmos, Celestia and Cosmos or Tia and Atom, these are modular chains. Okay, so it's not a value game, it's a narrative game. It's a narrative game. You must understand the trend and the narrative that is building in the industry.
So how do you actually play this game? How do you make money out of this game? किस तरीके से और लोग जो हैं वो सक्सेसफुली, बहुत कम होते हैं सक्सेसफुली पैसे बनाते हैं. I'll tell you how. First thing first, you should use tools जैसे कि platforms like Unlocks, Vesting app, DeFi Llama, Arkham Intelligence, ताकि आप whale activity को monitor कर सको. Okay, it's very important to monitor the whale activity. whale activities को और insider movements को monitor कर सको so that you actually understand what is happening behind the scenes. 5 रूल्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ बिफोर बाइंग एनी ऑल्ट. नंबर 1, टोकन एलोकेशन. टोकन को किस तरीके से एलोकेट किया है, कौन कितना होल्ड कर रहा है, डेवलपर्स कितने होल्ड कर रहे हैं, गवर्नेंस के लिए कितने इन्होंने रखे हुए हैं, प्रोजेक्ट ओनर्स कितना होल्ड कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर इन्होंने कितना एलोकेट किया हुआ है सेक्टर. सो डू नॉट बाय एनी टोकन अंटिल यू अंडरस्टैंड टोकन एलोकेशन. अनलॉक कैलेंडर, कब कितने टाइम पीरियड के ऊपर टोकन्स अनलॉक किए जाएंगे. ऑन चेन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग किसके पास है, टॉप होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हो रही है, किसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. नेक्स्ट, रोटेट द नैरेटिव्स अर्ली. राइट, एक नैरेटिव को नहीं फॉलो करो, एक नैरेटिव को नहीं उसके साथ ग्लूड हो जाओ कि नहीं AI का नैरेटिव है, RWA का नैरेटिव है. नो, जब भी कोई नैरेटिव बहुत ज़्यादा हाइप अप हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात की जा रही है, इट्स ऑलरेडी लेट. वो नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड हो चुका हुआ है और वो नैरेटिव ऑलरेडी डाई हो रहा है व्हेन यू हर्ड अबाउट दैट नैरेटिव. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कीप रोटेटिंग द नैरेटिव्स. Buy before the hype and sell before the unlock. Okay, I'll repeat: buy before the hype builds and sell before the unlock schedule is planned. Lastly, on-chain alerts को ज़रूर follow करो. For example, via Arkham Intelligence, ARKHAM, Arkham Intelligence या Nansen. इनके अलर्ट्स को ज़रूर फॉलो करो ताकि आप अर्ली इन्वेस्टर के मूव्स को फॉलो कर सको एंड यू कैन be strategic in exiting at the right time. मुझे comment section में ज़रूर बताओ, do you agree with my thoughts?